नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाओ। माई सेल्फ डॉक्टर हिना मेवाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति एंड स्त्री रोग, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी. In today's session, I am going to discuss about mechanism of normal labor. The series of movements that occur on the head in the process of adaptation during its journey through the pelvis is called mechanism of labor. मतलब हेड की पेल्विस के थ्रू जो जर्नी है उस टाइम जो भी एडेप्टेशन होते हैं हेड में, उसके जो मूवमेंट्स होते हैं उन सीरीज को मैकेनिज्म ऑफ लेबर कहा जाता है. The criteria for normal mechanism are lie will be longitudinal, presentation will be cephalic, position right or left occipital anterior, attitude will be flexion, and denominator will be occiput. In normal labor, fetal head enter into the inlet mostly through the transverse diameter, and the position and in this diameter the position will be occipitolateral position. Laser extend through one of the oblique diameter, so the position will be oblique occipito anterior. The engaging anteroposterior diameter of head is suboccipitobregmatic diameter, which is extend from occipital eminence to the center point of the bregma, and smallest diameter of the head, or in slight deflection the suboccipitofrontal, which is 10 centimeter. Suboccipitofrontal is extend from the occipital eminence to the midpoint of the frontal bone. Engaging transverse diameter is biparietal diameter, which is also 9.5 centimeter. Biparietal diameter is extent or distance between the two parietal eminence. Occipitolateral position is the commonest, so the mechanism of labor in such position is further described. Now, principal movements of mechanism of labor. First of all, engagement, then descent, after that flexion, internal rotation, crowning, then extension, then restitution, external rotation, and ultimately expulsion of the trunk. ये जितनी भी movements हैं ये सब क्रम से होते हैं, serial wise. The engagement takes place when the biparietal diameter of fetal head has passed through the pelvic rim. In primigravida, engagement occurs between 38 to 40 weeks. In multigravida, engagement lasts late first stage or after rupture of membrane occur. Prior to engagement, due to the lateral inclination of the head, the sagittal suture does not strictly correspond with the available transverse diameter of the inlet. It is either deflected anteriorly toward the symphysis pubis or posteriorly toward the sacral promontory. Such deflection of the head in relation to the pelvis is called asynclitism. Mild degree of asynclitism are common, but severe degree indicate CPD, means cephalopelvic disproportion. तो ये फीटस का सेजाइटल सूचर होता है और ये ऑसिपुटोफ्रंटल प्लेन है. ये सेजाइटल सूचर स्ट्रिक्टली कोरस्पॉन्ड नहीं करता है एंगेजमेंट के टाइम में. इसमें फीटल हेड या तो प्यूबिस सिम्फाइसिस की तरफ स्लाइटली डिफ्लेक्टेड होता है या फिर सैक्रम की तरफ स्लाइटली सैजिटल सूचर्स डिफ्लेक्ट होते हैं. तो ये जो डिफ्लेक्शन है इसको एसिंक्लिटिज्म कहा जाता है. ये एसिंक्लिटिज्म माइनर डिग्री का है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर मेजर डिग्री का है तो इसमें
सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. The second movement is descent. Descent कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है और ये स्लो प्रोसेस होती है और इनसिग्निफिकेंट होती है फर्स्ट स्टेज में, लेकिन सेकंड स्टेज में ये प्रोनाउंस्ड हो जाती है. और डिसेंट एंगेजमेंट से लेकर फिटस के कंप्लीट एक्सपर्जन तक कंटिन्यूअस होती है. फैक्टर विच फैसिलिटेटिंग डिसेंट आर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, बियर डाउन एफर्ट एंड straightening of the fetal ovoid, especially after rupture of the membrane. Next movement is flexion, which is essential for descent. As the head descends, need the resistance of the birth canal during descent, full flexion is achieved. Thus, if the pelvis is adequate, flexion is achieved either due to the resistance offered by the unfolding cervix, the wall of the pelvis, or by the pelvic floor. डायग्राम में देखिए, ये ओसिपुटो फ्रंटल डायमीटर है. इसमें ये डिफ्लेक्स्ड है स्लाइटली फिटल हेड. फिटस जो है वो स्लाइटली डिफ्लेक्स्ड है. इसमें नीचे की तरफ फिटस को डिसेंट करते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन और फिटल ओवॉइड, और ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है पेल्विक फ्लोर का, अनफोल्डिंग सर्विक्स का या फिर वॉल ऑफ पेल्विस का, उसकी वजह से फ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है. इस फ्लेक्शन के कारण जो फिटस पहले ओसिपुटो फ्रंटल डायमीटर में था, वो अब सब ओसिपुटो प्रेग्मेटिक डायमीटर में इंगेज होगा, फर्दर डिसेंट होगा. तो सब ओसिपुटो प्रेग्मेटिक डायमीटर जो है वो 9.5 सेंटीमीटर होता है, जबकि ओसिपुटो फ्रंटल डायमीटर 10 सेंटीमीटर होता है. इसलिए सब ओसिपुटो प्रेग्मेटिक डायमीटर में फिटल हेड अगर डिसेंट करता है तो डिलीवरी इजीली होगी और ये फर्दर डिसेंट में भी हेल्प करेगा. Further movement is internal rotation. Anterior rotation of occiput towards symphysis pubis is called internal rotation. In occiputolateral position, anterior rotation by 2/8 of a circle of the occiput, whereas in oblique anterior position, rotation will be 1/8 of a circle forward. इस डायग्राम में देखते हैं, ऑसिपुटोलेटरल पोजीशन अगर है तो उसमें जो ऑसिपुट है वो यहाँ होगा. जैसे ये पेल्विक कैविटी है तो उसके 8th पोर्शन को करते हैं जब हम पोजीशन पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह से 8 पोर्शन होते हैं. इसमें अगर यहाँ पर ऑसिपुट है तो इस कंडीशन में पोजीशन जो है वो ऑसिपुटोलेटरल पोजीशन होगी. और इसमें जो इंटरनल रोटेशन होता है, मतलब ओसिपुट जो सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ रोटेट करता है, वो 2/8 सर्कल रोटेट करेगा, क्योंकि 1/8 यहाँ का और फर्दर 1/8 यहाँ का. अगर ऑब्लिक एंटीरियर पोजीशन है, ऑब्लिक एंटीरियर पोजीशन जब ओसिपुट इस लेवल पे होगा तब उसको 1/8 एंटीरियर रोटेशन होता है. Prerequisites of anterior internal rotation of the head are well-flexed head, efficient uterine contraction, favorable shape at the mid-pelvic plane, and tone of the levator ani muscle. In majority of case, rotation occur at the pelvic floor. यानी जो रोटेशन होता है उसके लिए यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन अच्छे होने चाहिए, हेड भी वेल फ्लेक्स्ड होना चाहिए, जो कि फ्लेक्शन की प्रोसेस में होता है, और मिड पेल्विक प्लेन फेवरेबल होना चाहिए, साथ में लिवेटर एनाई मसल की टोन भी अच्छी होनी चाहिए ताकि रोटेशन हो सके. Torsion of neck is an inevitable phenomenon during internal rotation of the head. If the shoulder remain in the anteroposterior diameter, the neck has to sustain a torsion to 8th degree of circle, corresponding with the same degree of anterior rotation of the occiput.
but the neck fell to withstand such major degree of torsion, and as such there will be some amount of simultaneous rotation of the shoulder in the same direction to the extent of 1/8 of a circle, placing the shoulder to lie in the oblique diameter with 1/8 of torsion still left behind. तो क्या होता है जब 2/8 रोटेशन होता है हेड का, तो उससे नेक में टॉर्जन सस्टेन हो जाता है। उस सस्टेन टॉर्जन को रिमूव करने के लिए जो शोल्डर्स है वो 1/8 डिग्री प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ रोटेट होते हैं। तो उसके बाद भी नॉर्जन में नेक में 1/8 डिग्री टॉर्जन रिमेन होता है। लेकिन अगर ऑब्लिक डायमीटर है, ऑब्लिक एंटीरियर डायमीटर है, तो उसमें 1/8 टॉर्जन नहीं रहेगा नेक का। Next movement is crowning. After internal rotation of head, further descent occur until the subocciput lie underneath the pubic arc. As at this stage, the maximum diameter of the head, which is biparietal diameter, stretches the vulval outlet without any recession of the head, even after the contraction is over. Is called crowning of the head. हेड की क्राउनिंग तब कहेंगे जब मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेड जो है वो वल्वल आउटलेट को स्ट्रेच करे, और जब कॉन्ट्रैक्शन ना हो तब भी वो हेड वल्वल आउटलेट को स्ट्रेच करे, वापस रिसेशन ना हो उसका, तब उसको हम क्राउनिंग कहेंगे। और क्राउनिंग के टाइम ही एपिजियोटॉमी दी जाती है। फर्दर मूवमेंट इज एक्सटेंशन. Delivery of head take place by extension through couple of force theory. इसमें क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स हेड पर लगता है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, जबकि जो पेल्विक फ्लोर है वो रेजिस्टेंट करती है हेड को अपवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जो अल्टीमेटली डाउनवर्ड एंड अपवर्ड फोर्स है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और जो फॉरवर्ड थ्रस्ट है वो रिमेन रहती है और वो एक्सटेंशन में हेल्प करती है। तो इस डायग्राम में देख सकते हैं अपन, इसमें डिसेंट से जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जबकि जो पेल्विक फ्लोर है उसके रेजिस्टेंस के कारण अपवर्ड और फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है। तो जो डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और फर्दर जो फॉरवर्ड फोर्स है उसके कारण एक्सटेंशन होगा, और एक्सटेंशन से ही हेड डिलीवर होता है। नेक्स्ट इज रेस्टिट्यूशन. रेस्टिट्यूशन is the visible passive movement of the head due to untwisting of the neck sustained during internal rotation. Movement of restitution occur rotating the head through 1/8 of a circle in the direction opposite to that of internal rotation. Restitution में क्या होता है, जो head 2/8 डिग्री प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ रोटेट हुआ था, तब नेक में जो 1/8 डिग्री सस्टेन रह गया था टॉर्जन, तो उस टॉर्जन को रिमूव करने के लिए वापस हेड 45 1/8 सर्कल जो है वो अपोजिट टू प्यूबिक सिम्फाइसिस रोटेट होता है। इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो पहले ओसिपुट प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ था वो अब 1/8 रोटेट हो गया है और वह ऑब्लिक में आ गया है ओसिपुट, तो इसको रेस्टिट्यूशन कहते हैं, और ये नेक में जो टॉर्जन सस्टेन है उसको रिमूव करने के लिए होता है। फर्दर एक्सटर्नल रोटेशन. External rotation is the movement of rotation of the head visible externally due to the internal rotation of the shoulder. अब एक्सटर्नल रोटेशन में जो मूवमेंट होता है वो हेड का मूवमेंट जो होता है वो शोल्डर के इंटरनल रोटेशन की वजह से होता है। As the anterior shoulder rotates toward the symphysis pubis from the oblique diameter, it carries the head in the movement of external rotation through 1/8 of circle in the same direction as restitution.
The shoulder now lie in the anteroposterior diameter. The occiput point directly toward the maternal thigh. इसमें क्या होता है, जब एंटीरियर शोल्डर्स जो है वो इंटरनली प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ मूव करता है, तो हेड जो है वो, हेड का जो ऑसिपुट है वो 1/8 डिग्री और 1/8 ऑफ सर्कल रोटेट होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऑपोजिट। उसकी वजह से जो ऑसिपुट है वो डायरेक्टली ऑसिपुटोलेटरल पोजीशन में आ जाता है और मैटरनल थाई की तरफ डायरेक्टली पॉइंटेड होता है। Ultimately, birth of shoulder and trunk. Further descent takes place until the anterior shoulder escapes below the symphysis pubis first by a movement of lateral flexion of the spine. The posterior shoulder swept over the perineum. Rest of the trunk is then expelled out by lateral flexion. तो जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर शोल्डर है उसमें सबसे पहले एंटीरियर शोल्डर एस्केप आउट होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेटरल फ्लेक्शन के थ्रू, फिर पोस्टीरियर शोल्डर स्वीप अप होता है पेरिनियम के ऊपर और लेटरल फ्लेक्शन के थ्रू एक्सपेल आउट होता है और अल्टीमेटली ट्रंक भी एक्सपेल आउट हो जाता है। तो ये पूरी मैकेनिज्म है। इसमें सबसे पहले एंगेजमेंट से पहले हेड फ्लोटिंग होता है, फिर एंगेजमेंट फ्लेक्शन एंड डिसेंट होगा। डिसेंट के बाद इंटरनल रोटेशन होता है, तो इंटरनल रोटेशन से जो ऑसिपुट है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस पर आ जाएगा। देन एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन में सेम ऑसिपुट प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ ही रहेगा और हेड डिलीवर होगा। आफ्टर दैट रेस्टिट्यूशन होगा, तो रेस्टिट्यूशन में 1/8 रोटेशन होता है और हेड का जो ऑसिपुट है वो ऑब्लिक डायमीटर में आ जाता है। देन एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन में मैटरनल थाई की तरफ ऑसिपुट होगा, फिर उसके बाद में एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी, देन पोस्टीरियर शोल्डर एंड ट्रंक की डिलीवरी। So thank you for listening me. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you all are satisfied with my session. If you have any query, please write in comment box so I will resolve it. Thank you so much.